یہ پرستار کی ہے بھائی. میں اپنے بھائی کو ویلکم کرتی ہوں, بھائی عمران. تو آپ کی بھرپور تالیاں. ہلیلویا. خدا مجسم کی عظیم جلالی فتح مند اور قدرت والے نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام. آج میں جو کلام کی باتیں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, میرے عزیزو, میرا آج کا ٹاپک ہے کہ خدا جب کسی کو چنتا ہے, خدا جب اپنے بندوں کو چنتا ہے تو انہیں برکت بھی دیتا ہے, انہیں بلیسفل کرتا ہے, انہیں فروٹفل کرتا ہے. اور جو اپنی وفاداریاں اپنے خداوند کے ساتھ دکھاتے ہیں, خداوند انہیں پرومند کرتا ہے. ہلیلویا. ہم سب سے پہلے پرانے عہد نامہ میں چلتے ہیں. پہلا صموئیل اس کا 19 باب اور اس کی 15 آیت. چیپٹر 19 verse 15 and 16. خداوند اس جگہ فرماتے ہیں, خداوند نے اس سے فرمایا تو اپنے رستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا, اور جب تو وہاں پہنچے تو حزقیل کو مسا کر کہ ارام کا بادشاہ ہو, اور نمسی کے بیٹے یہو کو مسا کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو, اور ابیل باہولا کے الیشا بن صفات کو مسا کر کہ تیری جگہ نبی ہو. خداوند کے زندہ بخش کلام پڑھے جائیں, خداوند کی برکت ہو, خداوند کا شکر ہو. میرے عزیزو, یہ کلام کی بات جو بھی ہم نے خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے پڑھی ہے, یہاں پر خدا اپنے بندہ ایلیا کو آرڈر جاری کر رہا ہے. اسے کہہ رہا ہے کہ تو جا اور جا کر اپنی جگہ الیشا کو مسا کر کہ وہ تیری جگہ کیا ہو جی, نبی ہو. اب جب خدا کے بندہ ایلیا نے خدا کا یہ حکم رسیو کر لیا ہے, تب وہ اس حکم کو فالو کر رہا ہے. جب ہم سلاطین کے 19ویں باب کی 19ویں آیت میں آگے چلتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں, سو وہ وہاں سے روانہ ہوا اور صفات کا بیٹا الیشا اسے ملا, جو 12 جوڑی بیل اپنی آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا, اور وہ خود بار میں کے ساتھ تھا. الیشا جو ہے وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا ہے. وہ اپنے 12 جوڑی بیل جو ہیں ان کو جوت رہا ہے, اور خود جو ہے ان بار میں کے پیچھے ہیں. اب خدا کا بندہ ایلیا وہاں پر آ گیا ہے, اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی. کیا کیا ہے جی؟ اپنی چادر جو ہے وہ الیشا پر ڈال دی ہے. اب آگے سو بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا, مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے, پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا. اس نے اس سے کہا کہ لوٹ جا, میں نے تجھ سے کیا کیا ہے؟ تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر ذبح کیا, اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت ابالا اور لوگوں کو دیا, اور انہوں نے کھایا. تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا.
खुदा का बंदा एलिया जो रूह से मामूर है, आप उसके बड़े बड़े कामों को जानते हैं कि जब इसराइल के अंदर बुत परस्ती अरूज पर थी, तो वहां पर खुदा का बंदा एलिया जो है वो उनके बल के पुजारियों को क्या करता है जी, चैलेंज करता है। और आप उसके इस बड़े काम से वाकिफ हैं कि खुदा ने अपने बंदा एलिया को रूह से मामूर किया हुआ था, और जो कुछ बात वो खुदा के हजूर कहता, खुदा उसके लिए वो जारी कर देता। आप जानते हैं कि वो बल के पुजारी जो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और वो 400 बल के पुजारी जो थे उन्होंने भी एक बैल लिया, और एलिया ने भी एक बैल लिया। अब वो जो 400 पुजारी हैं वो सारा दिन उसके आगे अपने आप को झुकाते रहे, अपने आप को मारते रहे, पीटते रहे, लेकिन एट द एंड उनकी कोई बात सुनी नहीं गई। अब जब खुदा के बंदा एलिया की बारी आई है, तो अब जानते हैं कि जब उसने खुदा से मांगा तो खुदा ने आसमान से आग नाज़िल की है, और वो आग उसकी कुर्बानी को क्या कर गई है, चट कर गई है। अब जो हुक्म उसके लिए जारी हुआ है कि तू जा और एलीशा को अपनी जगह मर्जा कर, ताकि वो तेरी जगह नबी हो। और उसने खुदावंद के हुक्म को डिनाई नहीं किया, बल्कि वो खुदा के ऑर्डर को लेकर चला है, और उसने अपनी जगह जाकर एलीशा को मुंतखब कर लिया है। अब एलीशा उसके पीछे पीछे उसकी खिदमत कर रहा है। और जब हम दूसरे सलातीन में चलते हैं, उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा वाकया और आप इससे ऑलरेडी वाकिफ हैं कि अब वो टाइम आ गया है कि जब एलिया आसमान पर उठाए जाने को था, एलीशा बड़ी जान पहचानी के साथ उसके साथ अपनी वफादारी दिखा रहा है, और एलिया की जान नहीं छोड़ रहा। जहां जहां एलिया जा रहा है, एलीशा भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। और एलिया ने उसे बहुत दफा मना किया कि तू यहां रुक जा, तू यहां ठहर जा, लेकिन उसने कहा नहीं ए उस्ताद, मैं तेरी जान को नहीं छड़नी जिन्नी देर तक मैनू कुव्वत दा लिबास नहीं मिल जाता। सो वो एलिया के साथ अपनी वफादारी दिखाता रहा, और जब वो एलिया के पीछे पीछे चलता रहा, तो आप जानते हैं कि ये बात उसको भी पता थी कि आज एलिया जो है वो उठाए जाने को है। और वहां पर बैतल के मकाम के अंदर अंबियाज़ादे जो थे वो एलीशा से कहने लगे कि क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को उठा ले जाएगा? तो वो उनको छिड़कता है, खामोश रहो, मुझे पता है। और वो इस चीज को जानता था मेरे अजीजों। और जब एलिया नबी आसमान पर उठाया गया, तो एलीशा जो है वो नीचे देख रहा है, और उसने एलिया से क्या चीज मांगी है जी? एलीशा ने एलिया से क्या चीज मांगी है? एलिया ने उससे कहा, एलीशा ने कहा कि मुझे तेरा दुगना चाहिए, ऐ उस्ताद मुझे तेरा दुगना चाहिए। और आप जानते हैं कि जब एलिया आसमान पर उठाया जा रहा था, आतिशी रथ उसे रिसीव करने के लिए आ चुके थे, और एलिया और एलीशा दोनों अलग अलग हो गए। और एलीशा जो है नीचे चिल्ला रहा है, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और चिल्ला रहा है, और तभी आसमान से एलिया
की चादर गिरी और आकर अलीशा पर गिर गई। और अलीशा क्या हो गया जी? रूह से मामूर हो गया, रूह से मामूर हो गया। अगर हम दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाप उसकी 15 आए, भाई फराजरा पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। जब उन अम्बियाजादों ने जो यरू में उसके मुकाबल थे उसे देखा तो कहने लगे, एलिया की रूह अलीशा पर ठहरी हुई है। और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन तक झुककर उसे सिजदा किया। आमीन, हालेलुया। आपने यहाँ पर देखा कि वो अम्बियाजादे जो यरू में उसके साथ साथ थे, अब जब अलीशा वहां से वापस लौटा है, एलिया की चादर उसके पास है, और जब उसके रूह का दुगना अलीशा पर आ गया तो अलीशा ने क्या किया? वही चादर जो है पानी पर मारी। जिस रास्ते वो गए उसी रास्ते अलीशा वापस आया है। और उसने क्या किया जी? एलिया की वही चादर पानी पर जब मारी तो पानी 2 हिस्से हो गया, क्योंकि रूह का दुगना अलीशा पर आ चुका था। उसने खुदा की इस बरकत को रिसीव कर लिया था और वह बरकत उसकी वफादारी से उसे मिली। जब उन अम्बियाजादों ने उसे देखा तो कहा, ओ एलिया की रूह अलीशा पर आ गई है। और उन्होंने क्या किया जी? झुककर उसे सजदा किया। मेरे अजीजों, खुदावंद मुझसे और आपसे सिर्फ वफादारी चाहता है। अगर हम उसे अपनी वफादारी दिखाते हैं तो खुदावंद अपनी बरकतें, अपनी रहमतें हम पर जारी करता है। और आप जानते हैं कि जब अलीशा पर एलिया का दुगना आया तो एलिया ने बड़े बड़े जलाली काम किए। उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने कोड़िए के कोड़ जो है वो साफ किए। आप जानते हैं कि नुमान कोड़ी जब वो अलीशा के पास आया तो अलीशा ने ना तो उस पर हाथ रखा, ना उसके लिए कोई ऐसा बड़ा काम किया, बल्कि अपनी कोठरी के अंदर से ही उसने अपने मुंह से ये अल्फाज जारी किए, तो जा और उस नदी के अंदर जाके क्या कर जी? 7 मरतबा गोता लगा तो तू पाक साफ हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद उसके ऊपर अपनी बरकत जारी कर चुका था। और जिसके ऊपर खुदा का हाथ आ जाता है, खुदा का रूह काम करता है, वहां बड़े बड़े जलाली काम होते हैं। हालेलुया। स्वयं मैं और आगे आपको खुदा के बंदों से मुतारिफ करवाता हूं। यू ऑलरेडी आप उनको जानते हैं, क्योंकि खुदा अपने बंदों को जब लेता है तो उनके वसीला से बड़े बड़े जलाली काम भी करता है। हालेलुया। तो मेरे साथ पहला सैमुएल उसका 16वां बाब, चैप्टर 16 और उसकी पहली आयत। चैप्टर 16 वर्स, पहली वर्स। और खुदावंद ने सामुएल से कहा कि तू कब तक साउल के लिए काम खाता रहेगा? जिस हाल के मैंने उसे नबी बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतएली नबी यस्सी के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। हालेलुया, आमीन। अब यहां देखते हैं जी, खुदा का बंदा दाऊद नबी, दाऊद बादशाह
اب یہاں پر خدا سیموئل سے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے سینگ میں کیا کر، تیل بھر اور جا، اور میں تجھے کہاں بھیجتا ہوں جی؟ یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چن لیا ہے۔ کس نے چن لیا ہے جی؟ سیموئل نے؟ یس، خدا نے کہا کہ میں نے اسے چن لیا ہے۔ اب جب ہم آگے دیکھتے ہیں چیپٹر 16 کا ہی 12ویں آیت سے 13ویں آیت تک، بھائی ذرا پڑھیے گا۔ سو وہ اسے دبا کر اندر لایا، وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، اور خدا نے فرمایا اٹھ اور اسے مسا کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ تب سموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ آمین، ہاللویہ۔ دیکھ رہے ہیں کہ جب خداوند نے داؤد کو چن لیا ہے تو اس پر بھی خداوند نے جب اس کو چنا ہے تو خداوند کی روح اسی دن سے اس پر زور سے نازل ہوئی۔ اور آپ داؤد کے بھی بڑے بڑے کارناموں کو جانتے ہیں کہ داؤد میں 16 سال کا ایک بچہ لڑکا ابھی نوجوان ہی ہے، اور اس نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے جی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جاتی جولیت اسرائیل کے لیے وبال چھان بنا ہوا تھا، اور اسرائیل میں سے کوئی بھی اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن خدا کا روح داؤد کے اوپر ٹھہر چکا تھا، اور داؤد دلیری سے معمور تھا، بھرپور تھا، اور اس نے جا کر اس جاتی جولیت کو چیلنج کیا، تو ہوتا کون ہے زندہ خدا کی تحقیر کرنے والا؟ تو زندہ خدا کے لوگوں کا چیلنج کرتا ہے، میں آج ہی تجھے اس زندہ خدا کی قوت دکھاتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب داؤد نے اس چکنے پتھر سے اس کو مارا تو ایک ہی چکنے پتھر سے وہ جاتی جولیت ٹھیر ہو گیا۔ یہ ہے خدا کی قدرت۔ خدا جسے چنتا ہے اسے بڑھاتا بھی ہے، اسے سرفراز بھی کرتا ہے، اور یہ سرفرازی کب ملتی ہے؟ جب ہم خدا کے ساتھ اپنی وفاداری دکھاتے ہیں۔ یہ وفاداری الیشا نے بھی دکھائی ہے، یہ وفاداری ایلیا نے بھی دکھائی ہے، اور یہ وفاداری داؤد بھی دکھا رہا ہے۔ اور جب اس نے یہ کام کیا تو خداوند نے اسے سرفراز کیا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرانے والا ایک بادشاہ کے سنگھاسن پر بیٹھا ہوا، اور داؤد نے بڑے بڑی جنگیں، بڑے بڑے کام قوم بنی اسرائیل کے لیے کیے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، داؤد نے خداوند کی ہیکل کے لیے بھی سوچا تھا، لیکن خدا نے اسے منع کیا۔ خدا نے اس لیے منع کیا کیونکہ داؤد جو تھا بہت ساری جنگیں لڑتا تھا، اور اس کے ہاتھ جو تھے وہ خون آلودہ تھے۔ سو خدا نے اسی کی نسل میں سے یہ ٹاسک جو ہے آگے فارورڈ کر دیا، اور وہ کام جو ہے اس کے بیٹے سلیمان نے پایا تکمیل تک پہنچایا، اور خدا کی وہ خوبصورت ہیکل جس کو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں گیتوں میں، زبوروں میں۔ سو میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہماری وفاداریاں خدا کے ساتھ ہوتی ہیں تو خدا سرفراز کرتا ہے۔ آئے میں خدا کے ایک اور بندہ سے آپ کو متعارف کرواتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب
आयत से। पैदाइश 12वां बाब और उसकी पहली आयत। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक धनी को बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, से तू ऐसे बरकत हो। जो तुझे बीमारी कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और वो जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। मेरे अजीजों, ये खुदा का बंदा अब्राहम, जिसको ईमानदारों का बाप भी कहा गया है, उसका ईमान बहुत बड़ा है। अब जब खुदा ने डायरेक्टली अब्राहम, जिसको बाद में अब्राहम का लक़ब दिया गया है, खुदा ने उससे कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच में से निकल कर उस मुल्क में जा जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं, दिखाऊंगा। सो अब्राहम ने खुदा की उस बात का इनकार कर दिया ना? नहीं मेरे अजीजों, बल्कि खुदा का बंदा अब्राहम खुदा की उस बात को लेकर अपने रिश्तेदारों से, अपने नातेदारों के बीच में से, अपने माँ बाप के बीच में से, उस शहर के बीच में से निकलकर चल पड़ा, और उसने खुदा की बात को अपने जहन में रख लिया, अपने दिल में रख लिया, और अपनी वफादारी क्या दिखाई है जी खुदा को? उसने भी अपनी वफादारी खुदा को दिखाई है, और जो कुछ खुदा ने उसके लिए कहा वो उसके लिए किया है। आप जानते हैं कि खुदा ने उससे जो वादा किया उसे पूरा भी किया है। खुदा ने कहा मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, और तेरा नाम सरफराज होगा। सरफराजी खुदा की तरफ से आती है। आज भी मेरे अजीजों, जब हम अब्राहम का नाम लेते तो हम कहते हैं ईमानदारों का बाप। बाप वो होता है जिसके सूरत से नस्ल चलती है। इतना खूबसूरत मुकाम खुदावंद ने उसके लिए जारी कर दिया, और उसे कहा कि जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनके लिए बरकत चाहूंगा, और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उसके लिए लानत जारी करूंगा। और आज भी आप जानते हैं कि जो मुमालिक उसके साथ हैं वह सरफराजी की तरफ है, और जो आज भी से डिनाई करते हैं, उस पर लान तान करते हैं, वो पस्तहारी की तरफ है। सो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा अब्राहम ईमानदारों का बाप है, और खुदा के उस वादा से हटा नहीं है। खुदा ने उसे कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को कुर्बान कर। सो मेरे अजीजों, उसने खुदावंद की बात का इनकार नहीं किया, बल्कि अपने इकलौते बेटे को लेकर चल पड़ा, और खुदावंद के हुक्म की फरमाबरदारी की, खुदावंद के सामने अपनी वफादारी दिखाई, और खुदावंद ने उसे सरफराज किया है। हालेलुया। ये जितने भी मैंने चीजें आपको बताई हैं, ये सारी ओल्ड टेस्टामेंट की है, पुराने अहदनामा में से। अब जब मैं आपको नए अहदनामा में लेकर जाता हूं तो वहां भी खुदावंद अपने लोगों को सरफराज कर रहा है। हालेलुया। सो नए अहदनामा में से मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी
उसने अपने 12 शहीदों को पास बुलाकर उनको नेपाल लोगों पर अख्तियार बख्शा कि उनको निकाले और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये है। पहला शमाउल। बस अभी अब बताना आपको ये चाहता हूं कि ये खुदा का बेटा डायरेक्टली जमीन पर आ गया है। खुदावंद यीशु मसीह, अब जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों का चुनाव किया तो उनको ये इख्तियार भी बख्श दिया है कि हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी को क्या करें जी, दूर करें। अब जब हम उससे आगे चलते हैं तो वहां लिखा है कि बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिंदा करना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। ये इख्तियार जो है ये शागिर्दों को दिया जा रहा है। पीछे हमने देखा कि एलिशा जो है उसने एलिया की चादर से वो दुगना मसा हासिल किया है। खुदा ने उसे चुना, दाऊद को खुदा ने चुना, अब्राहम को खुदा ने चुना, और यहां बेटा जो है वो मुंतखब कर रहा है। ये वो बेटा है जिसने मेरे और आपके लिए इंसानी बदन लिया और आकर इस दुनिया में मेरे और आपके लिए लान तान सही। अब वो उन 12 शागिर्दों को इख्तियार दे रहा है और वो इख्तियार जो है वो इनको मिल चुका है। अब जो इख्तियार उनको मिला है तो अब उन 12 रसूलों का मिशन जो है वो स्टार्ट हो गया जी। अब जब उनका मिशन स्टार्ट हो गया है तो हम मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 8 आयतें पढ़ते हैं। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जगाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना। हालेलुया। यहां क्या है जी, ये इख्तियार उनको ट्रांसफर हो चुका है। किनको? उन 12 शागिर्दों का जिनका चुनाव खुदावंद यीशु मसीह ने किया और साथ ही ये इख्तियार भी इनको दे दिया कि मेरे नाम से ये काम करो। अब जब हम आगे चलते हैं अमाल की किताब में उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत, ये वो खुदा के दलेर लोग हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने अपना शागिर्द बनाया है और वो इख्तियार उनको दिया गया है और वो इख्तियार जब लेकर चले हैं तो वो उसके नाम से बड़े बड़े काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पढ़िएगा भाई साहब। लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी 3रे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता था, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टिकने मजबूत हो गए। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये वो इख्तियार है जो
यूहन्ना को खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है। और वो इख्तियार आप जानते हैं कि पतरस और यूहन्ना जब तीसरे पैर हैकल में दुआ के लिए जा रहे हैं और वहां पर उनको एक जन्म का लंगड़ा मिल गया जो हैकल के खूबसूरत दीवार दरवाजा पर बैठकर भीख मांगा करता था। और जब पतरस और यूहन्ना की नजर उस पर पड़ी है तो उसने अपने हाथ बढ़ाए हैं कि शायद मुझे को भीख मिलने लगी है। लेकिन मेरे अजीजों, वो ये नहीं जानता था कि मैं जिनसे भीख मांग रहा हूं वो खुदा के चुने हुए लोग हैं। और उन्होंने उसके लिए एक बड़ा काम कर दिया है। उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी के नाम से चल फिर। अब जब यीशु के नाम से मांगते तो खुदा यीशु मसीह आज भी बड़े बड़े काम करते हैं। वक्त कम है, सो अमाल की किताब के ही 9वें बाब की 36 आयत में हम जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं अमाल 9वां बाब उसकी 36वीं आयत। और यहाँ में एक शिविर थी, अभी का नाम जिसका तर्जुमा हिंदी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। और उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बागा खाना में रख दिया। और चूंकि लुदा बरवाफा के नजदीक था तो शिविर ने ये सुनकर के पतरस वहां है तो आदमी भेजे और उससे दरखास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। चौथी आयत पढ़िएगा, इसी के आगे चौथी आयत पढ़िए। 9वें बाब की चौथी आयत। नहीं सॉरी 42। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई और बतौर खुदा पर ईमान ले आए। और ऐसा हुआ कि वो बहुत दिन याफा में शमाउल राम दबार के यहाँ रहा। 42 वर्ष। 9वें बाब की 42वीं आयत। मैं पढ़ूंगा। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेकर दुआ की, फिर लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। ये है वो बड़े बड़े काम जो खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार से हो रहे हैं। वो इख्तियार जो आगे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, वो बरकत जो 12 शागिर्दों के अंदर जारी हो चुकी है और उसके नाम से बड़े बड़े जलाली काम हो रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के हुजूर अपनी वफादारी का इनकार करते हैं, हम उसे अपनी वफादारी नहीं दिखाती, उसको चीट करते हैं, तो उसका इंजाम भी मैं आपको दिखाता हूं। आप जानते हैं पहला सामुएल उसका 15वां बाब और उसकी 9वीं आयत। टाइम कम है, मैं वैसे ही आपको बता देता हूं कि खुदा ने साउल को जंग के लिए भेजा और कहा कि तू ना वहां से कुछ लेना, बल्कि जो कुछ भी वहां पर हो उसे हलाक कर देना, चाहे वो उनके जानवर हो, चाहे वो उनके बच्चे हो, जो कुछ भी हो, तू उनका वो है जो हलाक कर देना। लेकिन साउल जो है वो खुदा की बात को डिनाई कर देता है और वो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, मोटे ताजे बैल हैं, बछड़े हैं, बकरे हैं, उनको लेकर वो साइड पे कर लेता है और खुदा इस चीज से नाराज होता है। और आप जानते हैं कि खुदा का रूह साउल से जुदा हो जाता है
اور پھر بری روح ہے جو اس کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ساؤل کو بھی خداوند نے مسا کیا تھا، لیکن جب اس نے خداوند کے حضور اپنی وفاداری نہیں دکھائی تو خداوند نے اپنا روح سے الگ کر لیا ہے۔ اب اسی طرح جب ہم نئے عہد نامہ کی طرف آتے ہیں تو اعمال کی کتاب کے اندر اس کا چیپٹر نمبر 5 اور وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حنانیہ اور سفیرہ یہ پطرس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور وہاں پر جی کیا ہوتا تھا جی، جو ان کے ساتھ لوگ چلتے تھے وہ اپنی زمینوں کو یا گھروں کو بیچ کر جو بھی قیمتی چیزیں ہوتی تھی وہ لے کر آتے اور لا کر رسولوں کے پاؤں کے نیچے رکھ دیتے تھے، اور جس کسی کو ضرورت ہوتی تھی وہ ان میں بانٹ دیتے تھے۔ اب یہاں پر حنانیہ اور سفیرہ نے بھی اپنی جائیداد بیچی ہے، اور جب انہوں نے اپنی جائیداد بیچ دی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ سارا حصہ لا کر ان رسولوں کے سامنے رکھتے، انہوں نے شیطان جو ہے، ابلیس جو ہر وقت تیار رہتا ہے، اس نے آ کر ان کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے جی، انہوں نے پورا حصہ جو ہے وہ وہاں پر لے کے نہیں گئے، بلکہ اس حصہ میں سے لے کر کچھ سائڈ پہ رکھ دیا، اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جی انہیں نہیں وکے ہے، دو کہ وہ کہہ رہے ہیں ہاں انہیں نہیں وکے ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں جانتا کہ جو آسمان پر بیٹھا ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اور اسی گھڑی اس کا کیا ہے جی، دم نکل گیا۔ اب جب آگے یہی بات جو ہے تقریباً 3 گھنٹے گزر گئے، اس کی بیوی کو یہ پتا نہیں ہے، اب یہی بات جب اس کی بیوی سے پوچھی جا رہی ہے، بیٹھ جی اے زمین انہیں دی بھی کی ہے، دیکھو جواب کی آ رہے ہیں، انہوں شاید پتا نہیں سی کہ وہ تو جڑے بھائی نہیں تو وہ تو بہت ہو گئے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے اپنے منہ سے جھوٹ نکالتی ہے اور کہتی ہے ہاں یہ تو اتنے کی بھی کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا کا قہر ان دونوں میاں بیوی پر نازل ہوا، اور اس کی بیوی بھی جو ہے اسی دم گری اور مر گئی۔ سو میرے عزیزو، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنی وفاداریاں خدا کے ساتھ دکھاتے ہیں تو خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے، لیکن جب ہم خداوند کو چیٹ کرتے ہیں تو خداوند جو ہے ہم سے ناراض ہوتا ہے، اپنا قہر جاری کرتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے بڑی ایک خوشخبری بھی ہے۔ اب جب ہم متی کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 37ویں آیت 37، اب یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں جی جو میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے کہ فصل تو بہت ہے، میرے لوگ تو بہت ہیں، لیکن ان تک کلام پہنچانے والے، میری منادی کرنے والے، میری خوشخبری پہنچانے والے ابھی بھی کم ہیں۔ سو خداوند میرے اور آپ کے لیے یہ جاری کر رہا ہے کہ ہم اس کی فصل کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنی وفاداری اس کے ساتھ دکھانے والے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو جب ہم اپنی وفاداریاں خدا کے ساتھ دکھاتے ہیں تو خدا سرفراز کرتا ہے، جیسے اس نے
अब्राहम को किया, जैसे उसने दाऊद को किया, जैसे उसने यूहन्ना और पतरस को किया, खुदावंद आज मेरे और आपके लिए भी यही चाहता है, वो सरफराज करना चाहता है। सो मैं आज के कलाम के वसीला से खुदावंद के रूप से दुआ करता हूं कि खुदावंद मेरे और आपके लिए इस कलाम की बरकत को जारी करे। आमीन।